وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب عليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، آج میں اس ربیع الاول کے مہینے میں انتہائی تکلیف اور انتہائی دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. میں 2-3 دن سے کوشش کر رہا تھا کہ اس موضوع پر بات کروں، لیکن میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا. سچی بات یہ ہے کہ میں جب میں تصور میں لاتا ہوں پیرس کا وہ شہر جس کے ہر چوراہے پر، ہر بڑی عمارت پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے کارٹون جو ہے وہ بڑے بڑے نیون سائن اور پوسٹرز کی طرح، بل بورڈز کی طرح پہ آویزاں ہیں. اور وہ فرانس کا شہر جس کے اندر، وہ ملک جس کے اندر 60 لاکھ کے قریب مسلمان آباد ہیں، وہ دنیا جس کے اندر 1 ارب 50 کروڑ کے قریب مسلمان موجود ہیں، اس دنیا کی چال ڈھال میں کوئی فرق نہیں آیا. ہمارے بازار ویسے آباد ہیں، ہماری زندگی کے معاملات سب چل رہے ہیں، ہم وہ تمام تر کام کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی روٹین کے ہوا کرتے تھے. ہم عشق رسول کی تابع دار ہیں، ہم روز مجالس سے نعت میں منعقد کر رہے ہیں. یہ عجیب و غریب ربیع الاول ہے کہ جس ربیع الاول میں باقاعدہ ایک حکمران یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ کے مقابلے میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کریں گے اور ہم تمہیں دیکھ لیں گے. 57 ممالک. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ساری سیاسی سرگرمیاں ویسے ہی چلی جا رہی ہیں. 2.5 کروڑ سے زیادہ مسلمان جو ہیں یورپ کے اندر آباد ہیں. کم از کم 5-6 ملکوں کی مل کے آبادی جو ہے یہ نواز شریف کے خلاف بینر لے کے اس کے دروازے پہ جا کے احتجاج کرتے ہیں. لیکن یہ ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے. اور اس یورپ کے اندر، اور اس یورپ کا غلیظ اور مکروہ چہرہ جو گزشتہ تقریباً 6 صدیوں سے مسلمانوں کے ساتھ کروسیڈ، صلیبی جنگوں کے اندر اس نے ظلم و بربریت کیا. کیا یورپ میں رہنے والے نہیں جانتے کہ فرانس سے زیادہ ظالم کلونیل پاور کوئی نہیں تھی جس نے الجزائر سے لے کے مصر سے لے کے باقی تمام علاقوں کو تباہ برباد کیا؟ ہمارے جلسے چل رہے ہیں. کیا یہ توہین مولانا فضل الرحمان کے والد محترم مولانا مفتی محمود کی ہوئی تھی ایسے؟ کیا یہ توہین نواز شریف صاحب کے والد اور مریم نواز کے دادا کی ہوئی ہوتی؟ کیا ایسی ہی توہین بلاول بھٹو کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی ہوئی ہوتی؟ کیا ایسی ہی توہین انس نورانی کے والد شاہ احمد نورانی کی ہوئی ہوتی؟ محمود خان اچکزئی کے باپ صمد خان اچکزئی کی ہوئی ہوتی؟ تو جلسے کا رنگ مختلف ہوتا. تم وہ لوگ ہو جو ایک بیان دے کے میرے نبی کے جذبات سے کھیلنے والے لوگوں کو ڈراتے ہو. تم ایک ٹویٹ کر کے، تم ایک خط لکھ کے یہ سمجھتے ہو کہ تم نے فرض ادا کر دیا. میں نے سورہ توبہ کی جو آیات پڑھی ہیں، اس کے آیات پڑھنے کے بعد آپ بندہ کام جاتا ہے. صرف ترجمہ سناتا ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
अपने बापों और भाइयों को भी अपने रफीक ना बनाओ, और अगर वो ईमान और कुफ्र पर तरजीह दें तो उनमें से जो उनको रफीक बनाए वो जालिम होंगे। और नबी कह दो, बहुत बड़ी वार्निंग, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे अजीज व अकारिब और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वो कारोबार जिनके अंदर मान पड़ जाने का तुम्हें खौफ रहता है, वो मसाकिन तरसौना, और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद हैं, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से अजीज हैं, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह का फैसला तुम्हारे सामने ले आए। अल्लाह का फैसला बहुत करीब है। मैं बहुत अरसे से इस बात की वार्निंग दे रहा हूं कि अल्लाह का फैसला बहुत करीब है। ये वो हालत हमारी आ चुकी हुई है कि हमारे दिल जो है अब उस तरफ मायले नहीं होते। वो उम्मत जिसकी अलामत हुआ करती थी कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान हो जाया करती थी। जब एम शफी से पूछा, मुझे हैदराबाद के केस के ऊपर जिसने अपनी खातून उसको कत्ल कर दिया था, अंग्रेज को उस बावर्ची का केस लड़ रहे थे, तो जज ने कहा कि आप तो पढ़े लिखे बंदे हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, लिंकन दिन से आपने किया हुआ है, तो आप जैसे बंदे से मुझे जज्बातियत की तवक्को नहीं थी। तो ने एक बात कहा था, कही थी, मेरी बात मुझसे बात नहीं हो पा रही, सच्ची बात है। आपको शायद अंदाजा नहीं कि ये उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करती है। इमाम मालिक से किसी ने पूछा था तौहीन रिसालत के बारे में, तो आपने कहा था उस उम्मत को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है, हक नहीं है तो जब अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त कर ले, उसके बाद जिंदा चलती फिरती रहे। मुझे सहाबा की कहानियां बयान नहीं करनी कि उन्होंने कैसे मोहब्बत की, मुझे उन लोगों की कहानियां बयान नहीं करनी यहाँ पर कि जो तौहीन रिसालत के ऊपर जिंदगी बेचैन हो जाया करते थे और उसकी गर्दनें उड़ाने के लिए तैयार हो। मुझे सिर्फ आप से मुखातब हो वो लोग कि जो यूरोप में रहते हैं, और मैं आज बता रहा हूं कि क्या कुछ होने वाला है तुमके साथ, तुम किस उलझन का शिकार होने वाले हो और किस अदाब का कूड़ा तुम्हारे पर बरसने वाला है। मेरे सामने हादिस की किताबें खुली हुई है। ये जो चंद महीने हैं, ये आगाज जो है वो आसान छोटा आगाज नहीं है। इस आगाज के अंदर हम आलमगीर जंग के अंदर दाखिल होने वाले हैं। हम उस जंग के अंदर दाखिल होने वाले हैं कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा तबाही की वही जो है उन मुसलमानों के ऊपर है कि जो यूरोप के अंदर आबाद है। इसीलिए मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अना बरीउम मिन कुल्लि मुस्लिमिन युकीम बैन असरल मुशरिकीन, मैं उस मुसलमान से बरी हूं कि जो मुशरिकीन के दरमियान रहाइश इख्तियार करता है। ये आर्मीनिया और अजरबैजान की जो जंग है और ये जो खाके हैं जिस तरफ हमें लेके जा रहे हैं, ये हमारा वो मैदान जंग जो है, इस वही मैदान जंग मुकम्मल तौर पर तैयार होकर खड़ा हो चुका हुआ है। हमें सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर खामोशी की सजा मिलने वाली है। क्या अजीबोगरीब है। आज 2 दिन के अंदर क्या किस मुंह से हम रसूल अकरम की नातें पढ़ते हुए रबीउल अव्वल के जुलूस पे जाएंगे? किस मुंह से हम कहेंगे कि हम आप पे कुर्बान हैं, हम सैयदना हसन की नातें पढ़ रहे होंगे, हम कसीदा बुर्दा पढ़ रहे होंगे, हम जामी की नातें पढ़ रहे होंगे। किस मुंह से? 2.5 करोड़ लोग यूरोप में आबाद हैं, 1 अरब 50 करोड़ मुसलमान आबाद हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी मुझे मैं तसव्वुर करता हूं, तो मैं काम चाहता हूं कि वो शख्स जो सुबह कारोबार पे निकलता होगा पेरिस शहर के अंदर, वो शख्स जो कि स्पेन से रवाना होता होगा, स्विट्जरलैंड से रवाना होता होगा, हॉलैंड से रवाना होता होगा, पेरिस से गुजरते हुए निकलता होगा और वो चारों तरफ देखता होगा ये क्या हो रहा है। तुम्हें इमरान खान के खिलाफ जुलूस निकालने अच्छे लगते हैं, तुम्हें नवाज शरीफ के खिलाफ जुलूस निकालने अच्छे लगते हैं। तुमसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा।
वक्त आने वाला है। वो शहर तुमने पसंद फरमाया जिनके बारे अल्लाह कहता है ला युगर्रनका तकल्लुबुल लज़ीना कफरू फिल बिलाद, तुम्हें काफिरों का इस तरह चहल पहल करना, इस तरह खुद शहरों के अंदर चहल पहल करना तुम्हें धोखे में डाल दे। किताब अल फितन की इस हदीस के ऊपर बात खत्म करना चाहूंगा। नईम बिन हम्माद की ये हदीस ऐसी हदीस है जो कुस्तुनतुनिया की फतह के ऊपर, मैं अरबी के अल्फाज में सुना देता हूँ। पूरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्शा खींचा है कि जिस जख्ते के अंदर वो तमाम, जब यूरोप के 80 झंडे जो है 12,000 फौज फी झंडा लेके वो चलती हुई आएगी और उसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर फतह करती हुई ये कुस्तुनतुनिया, ये पूरा फतह करती हुई शाम के इलाके अमाक में पहुंच जाएगी और वो लड़ाई शुरू होगी। तो उस दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो लोग यूरोप को ऑप्ट करेंगे, जो वहां बैठे होंगे, सिर्फ अरबी की हिफाजत तर्जमा सुना देता हूँ, उसके बाद जा देता हूँ। तस्बिर रोमा अला बकिया फी बिलादिहिम मिनल अरब फयक्तुलूहुम वयक्तुलूनहुम हत्ता ला यबकी बिल अर्द रोम अरबियन वला अरबियतन वला वलद अरबिया अक्तल। फरमाया रूमी शहरों में बाकी मानदा अरबों पर हमला कर देंगे। कुछ लोग होंगे जो जहाद के लिए निकलेंगे जब ये जंग शुरू होगी, लेकिन कुछ होंगे जो कहेंगे नहीं, हम तो सेकुलर्स हैं, लिबरल्स हैं, हम तो इनके लाइफस्टाइल में सब हो गए हैं, हमें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा लगता है। वो भी तो अपने ईसाइयों के हज़रत ईसा के कार्टून बनाते हैं, क्या फर्क पड़ गया अगर हमारे पर। ये जो लोग वहां बचेंगे, और अक्सरियत उनके अरबों की है, पाकिस्तानी बहुत कम है, अक्सरियत उनके अरबों की, इसलिए रसूलुल्लाह ने अरबों का नाम दिया। रोमी शहरों में बाकी मानदा अरबों पर हमला कर देंगे, उन्हें कत्ल करेंगे, यहां तक कि रोम की जमीन में ना कोई अरबी मर्द, ना कोई अरबी औरत और ना कोई अरबी बच्चा बाकी रहेगा, सब कत्ल कर दिए जाएंगे। ये सिर्फ दिनों की बात रह गई है। वो जो अहले नजर हैं वो खौफ से कांप रहे हैं, उनको पता है कि ये दिसंबर के महीने से जिस जंग ने अपना आगाज लेना है, बाकी अल्लाह जानता है क्या है, लेकिन जो हमारे अमाल हैं हमें इसकी सजा मिलने वाली है। इससे पहले कि वो सजा हम पर बहसीयत मजबूरी मुसल्लत हो जाए, हमें सैयदुल अंबिया की हुर्मत के लिए खड़े हो जाना चाहिए। वाखिर दावाना